السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے کورونا وائرس انفیکشن کے تعلق سے کچھ اچھی خبریں میڈیا کے سامنے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 1049 پازیٹیو کیسز سامنے آئے، جس سے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 21,393 ہوئی، لیکن اس میں مثبت خبر یہ ہے کہ اب تک 4,257 افراد ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اب تک کے تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک میں کورونا کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تک ملک میں معاملات 3 سے 4 دن میں دگنے ہو رہے تھے، لیکن اب یہ رفتار 7 دن پر پہنچ گئی ہے۔ لو اگروال نے میڈیا کے سامنے یہ بھی بتایا کہ جہاں پہلے 4 اضلاع سے کوئی کیس نہ ہونے کی خبر آئی تھی، وہیں اب یہ تعداد بڑھ کر 12 ہو گئی ہے۔ اس طرح سے ملک میں اب 78 ایسے اضلاع ہیں جہاں گزشتہ 14 دنوں سے کوئی کیسز نہیں آئے ہیں۔ اتر پردیش میں تبلیغی جماعت پر جلد از جلد پابندی عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ریاستی اقلیتی کمیشن کا یہ مطالبہ ہے، جس کے لیے اس نے حکومت کو باضابطہ ایک خط بھی بھیجا ہے۔ کمیشن کے مطابق تبلیغی جماعت کے سبب ریاست کے شہری بطور خاص مسلمان اس مہلک بیماری سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس جماعت کا تعلق پاکستانی دہشت گرد تنظیم سے بھی ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اس لیے اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ وہیں ملی و مسلم سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دانشوروں نے کمیشن کے اس عمل پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہی ختم کر دینے کی مانگ کی ہے۔ کمیشن کے سینئر سید اقبال حیدر کے دستخط شدہ یہ خط چیف سیکرٹری آر کے تیواری کو بھیجا گیا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ملک پوری طرح سے لاک ڈاؤن میں ہے۔ مسجدیں فرزندان توحید کے لیے فی الحال بند ہیں، چنانچہ ایسے میں کیسے افطار کا نظم کیا جائے اور کیسے نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اس سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند اور استاد حدیث دارالعلوم دیوبند مولانا سید ارشد مدنی نے خصوصی باتیں کہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ لاک ڈاؤن جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر مسجد سے تعلق نہ رکھنا بہت ہی غمزدہ گزر رہا ہے۔ لوگوں کے فون آ رہے ہیں، لوگ مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، چنانچہ اس پر ہم نے یہی کہا ہے کہ کورونا وائرس ایک وبا ہے، خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں لگے گی، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ اجتماعیت کی بنیاد پر دوسروں کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ یہ نیت ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہماری ذات سے کوئی دوسرا اس وبا کا شکار نہ ہو۔ اس لیے ان حالات کے اندر رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کو قربانی دینی ہے اور اجتماعیت سے دور رہنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ وبا سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ریاست میں ایک طرح کا دستوری بحران پیدا کرتے ہوئے گورنر جگدیش دھنکر کو 5 صفحات کا ایک خط لکھا اور الزام لگایا کہ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ محض ایک نامزد عہدیدار ہیں، جبکہ خود وہ یعنی ممتا بنرجی ایک منتخبہ حکومت کی سربراہی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ آپ کے خطوط کی زبان، لب و لہجہ اور پیامات غیر پارلیمانی اور میرے عہدے کی توہین ہے۔ آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ میں ہندوستان کی ایک قابل فخر ریاست کی ایک منتخب چیف منسٹر ہوں، اور آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک نامزد گورنر ہیں۔ بنگال میں مہلک بیماری کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیموں کے دورے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ تمل ناڈو میں تبلیغی جماعت کے شرکاء جنہوں نے گزشتہ ماہ نئی دہلی کے نظام الدین مرکز میں پروگرام میں شرکت کے بعد مہلک بیماری کے مثبت پائے گئے تھے، وہ متاثرہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنا پلازما عطیہ کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے بعد نظام الدین مرکز میں منعقدہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اسی کے نام پر تبلیغی جماعت کے متعلق بے بنیاد الزام لگائے جا رہے تھے۔ ٹویٹر پر #کورونا جہاد ٹرینڈ کر رہا تھا، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہے اس پر سوشل میڈیا پر کوئی چرچا نہیں ہے۔ دراصل ہندوستان میں کورونا کے خلاف جدوجہد جاری ہے، وہ اب تبلیغی جماعت کے اراکین کی مدد کے بغیر نامکمل نظر آ رہی ہے۔ کورونا کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کے استعمال پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ تھراپی اسی صورت میں مریض کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ اس پر دواؤں کا کوئی اثر نہ ہو۔ جب کورونا سے متاثر ہونے والوں کے جسم میں بیماری سے لڑ کر مکمل صحت یاب ہونے والوں کے خون سے حاصل کردہ اینٹی باڈیز منتقل کیے جاتے ہیں تو مریض میں اتنی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا نظام کورونا سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ مقامی علماء اکرام اور دیگر سماجی کارکنان ریاست کے مختلف اضلاع کے مرکز میں منعقدہ اجتماع کے شرکت کے ساتھ ساتھ رابطہ کر رہے ہیں تاکہ خون کا عطیہ اور پلازما تھراپی کرانے کے لیے تیار رضاکاروں کی ایک فہرست تیار کی جا سکے۔ گجرات کے وڈودرا کے ایک اسپتال سے ڈسچارج مہلک بیماری کے تقریباً 40 مسلم مریض اپنا خون پلازما دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے سے مریضوں کو صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں مرکزی حکومت نے گجرات کے صحت عہدیداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ تجرباتی بنیادوں پر پلازما تھراپی کا استعمال کریں، جس کا مقصد سنگین حالت میں پائے جانے والے مریضوں میں قوت مدافعت کو بہتر بنایا جائے۔
प्लाज्मा सेहतयाब मरीजों के खून से हासिल किया जा सकता है और दीगर मरीजों में इंजेक्शन के जरिए मुंतकिल किया जाता है। आज 44 मरीजों को वडोदरा कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। बरादरी के एक लीडर जुबैर गोपलानी ने बताया कि अगरचे इन्हें डिस्चार्ज किया गया है ताहम कुछ वक्त के लिए इन्हें एक होटल में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि बेहतर निगहदाश्त की वजह से ये मरीज शिफायाब हुए हैं। इन मरीजों ने प्लाज्मा के लिए अपने खून का अतिया देने से इत्तेफाक जाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत फाइनेंस के एक ट्वीट को पेश करते हुए समाज के इंतहाई मुतासिर तबके के लिए इनकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि वज़ारत फाइनेंस ने 22 अप्रैल तक 33 करोड़ गरीब अफराद को 31,235 करोड़ रुपए के माली इमदाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फराहम की है। उन्होंने बताया कि डिजिटल अदायगी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए जिसे इनकी हुकूमत ने कायम किया, नगद रकम रास्त इस्तिफादा कुनिंदों के खातों में जमा करा दी गई। मोदी ने इस दौरान पंचायत राज निज़ाम के अरकान को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बहादुर सिपाही करार दिया और कहा कि सब्र, नज़्म, ताउन और चौकसी से कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त दी जा सकती है। जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमामों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के दौरान मौलिक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन की पाबंदी करें और घरों में ही इबादतों को अंजाम दें। सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ने अपने वीडियो पैगाम में लोगों से कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और घरों में ही रहकर रमज़ान की इबादतों को अंजाम दें। मरकजी हुकूमत ने कहा कि अगर कोई मुलाजिम कोविड-19 के लिए मुज़बित पाया गया तो इस कंपनी के CEO के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही फैक्ट्री मुहरबंद की जाएगी। हुकूमत ने यह भी कहा कि किसी को भी लॉकडाउन से मुतालिक नजरसानी शुदा रहनुमायाना हिदायत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी को समाज को बांटने और फिरक़ेवाराना तकसीम को हवा देने की मुबैना कोशिशों पर तशवीश जाहिर की है। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्टी नफरत का वायरस फैला रही है जिसकी वजह से समाजी हम आहंगी को शदीद नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी के एक इजलास में हुकूमत को मशवरा दिया कि लॉकडाउन की बकीद मुद्दत के दौरान सूरत हाल से निकलने और मुस्तकबिल के लिए एक जामा मनसूबाबंदी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। कांग्रेस के आला कायदीन का यह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िद हुआ। तकरीबन 4 घंटों तक चले इस इजलास में कोविड-19 से निमटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के मशवरे दिए गए। साथ ही मईशत का अहिया और रोजगार व आमदनी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर भी जोर दिया गया। बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी के जुर्म पर इसके सारे मुसलमानों को मौर्ड इल्ज़ाम ठहराना गलत है। वजीर अक़लियती उमूर ने तबलीगी जमात के नई दिल्ली में इज्तिमा के बाद कोविड-19 के केसेस को फैलने की वजह से सारे मुस्लिम तबके पर इल्ज़ाम आयद किए जाने के मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक ग्रुप के जुर्म पर सारे मुसलमानों को मौर्ड इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अक़लियती तबके के तमाम अरकान ने इस ग्रुप की मजम्मत की है। नकवी ने कहा कि किसी एक शख्स या तंजीम के जुर्म पर इसके सारे तबके को मौर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इस तंजीम ने जो कुछ भी किया है वो मुजरिमाना गफलत या जुर्म है। इसकी अक्सर मुसलमानों ने सख्ती के साथ मजम्मत की है। हिंदुस्तान की रियासतों केरला और कर्नाटक में रमज़ान का चांद नजर आ गया और जुम्मे से पहला रोज़ा शुरू हो गया, जबकि मुल्क की माबाकी रियासतों में तौक़्क़े है कि माह सय्याम हफ्ते से शुरू होगा। इत्तलात के मुताबिक केरला के कोझिकोड और कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में चांद नजर आया और वो आज से रोज़ा रखना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना साद कांधेलवी के फार्म हाउस पर धावा किया है। अहदेदारों ने यह बात बताई। मौलाना साद कोविड-19 लॉकडाउन अहकाम की खिलाफ वर्जी में यहाँ मजहबी इज्तिमा का एहतमाम करने पर माखूज किए गए हैं। ये धावा उत्तर प्रदेश के जिला शामली में वाक़ एक फार्म हाउस पर किया गया। मौलाना साद के साथ दीगर 7 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज है। ये कार्रवाई निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की शिकायत पर की गई। लॉकडाउन के दौरान कल से शुरू हो रहे मुक़द्दस माह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में मालेगांव की आवाम जब सुबह ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए घरों और मोहल्लों से निकली तो जगह जगह उनका इस्तकबाल पुलिस के डंडों से हुआ। पुलिस ने जिस बेदर्दी से मोहल्लों में लाठियां बरसाई है और बच्चों, बुजुर्गों, माओं, बहनों तक को चौराहों पर जिल्लत आमेज सजाएं देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बिला आखिर सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान इस्लामाबाद के ख़याबान निशात और अल्लामा इकबाल पुल पर अवामी गुस्सा उबल पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों का अवामी हजूम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ जिस तरह अल्लामा इकबाल पुल पर और ख़याबान निशात पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहा था, उससे ऐसा लगता था कि पुलिस और अवाम का टकराव कहीं ना हो जाए। जिला पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि लोगों का हुजूम जमा हो गया था, लेकिन पुलिस के आला हुक्काम की मौजूदगी में मामला खत्म हो गया। जुमेरात को खलीजी खित्ते में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने पर जुम्मे को पहला रोज़ा करार पाया और नमाज इशा के बाद तरावी शुरू हो गई। खाने काबा में
मौलिक बीमारी, बहरान और लॉकडाउन के सबब मुत्तसिल फर्श पर तवाफ रोक दिया गया था। अब रुकावटें हटा दी गई हैं और तरावी का एहतमाम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि कोविड-19 की आलमी वबा बहुत तेज़ी के साथ एक इंसानी बहरान से इंसानी हुकूक के बहरान में तब्दील हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वीडियो पर आज जारी करदा एक बयान में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विसेज की फराहमी में इम्तियाजी रवैये देखने में आए, कई मुकामात पर नफरत अंगेजी देखी गई तो कहीं नाजुक ग्रुपों को शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में सख्त सिक्योरिटी इक़दामात वबा से निपटने की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद इस मरतबा दुनिया भर में रमज़ान मुबारक मुख्तलिफ अंदाज में गुजरेगा। यूएई की वज़ारत सेहत की तर्जुमान डॉक्टर फरीदा हसनी का कहना है कि हर किसी की सेहत हमारी तरजीह है। इस मुश्किल मरहले से गुजरने के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान की रिवायत को तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि इफ्तार की मेज़ पर ख़ानदान का इज्तिमा और हमसायों को खाना भेजना बरसों से हमारी रिवायत रही है, लेकिन ये साल ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए हमें इन रिवायत को मुलतवी कर देना चाहिए। तेलंगाना में यौम मजदूर यानी यकुम में से कई मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे जो रियासती हुकूमत के महकमा जात में बहैसियत आर्जी मुलाजिम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से महकमा जात को मुआशी अबतरी के हालात का मुकाबला करने अहकामात के बाद महकमा जाती सतह पर गैर इक़दाम किए जाने लगे हैं और इब्तदाई मरहले में इसका शिकार आउटसोर्सिंग पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन बनने लगे हैं और महकमों की जानिब से मुलाजमीन की तखफीफ का अमल शुरू कर दिया गया। महकमा बागबानी के तहत बाग़ आमा में बरसरकार 120 मुलाजमीन जिन्हें 10 बरस कबल एक इलामिया जारी करके खिदमात की अंजामदही के लिए मुलाजमत फराहम की गई थी, इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि महकमा बागबानी की जानिब से इन मुलाजमीन को नोटिस हवाले करके यकुम में यानी आलमी यौम मजदूर से खिदमात पर ना आने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इनकी खिदमात से दस्तबरदारी इख्तियार करने का फैसला किया गया है और रियासती हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा पॉलिसी के तहत महकमा बागबानी की जानिब से यह फैसला किया गया है। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान लाखों अफराद के बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि मुआशी अबतरी का शिकार कई तबकात होंगे जिनमें मुलाजमत पेशा अफराद भी रहेंगे, लेकिन रियासती हुकूमत के महकमा जात में आरिज़ी खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की ऐसे मुश्किल वक्त में बर्खास्तगी मज़ीद मुश्किलात पैदा करने का सबब बन सकती है। इसीलिए इस तरह के इक़दाम से गुरेज किया जाना चाहिए। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के अलावा दीगर में दाखिलों के लिए अहलियती इम्तहानात के लिए तारीख हालात मामूल पर आने के बाद जारी की जाएगी। सदरनशीन तेलंगाना कौंसल बराए आला तालीमात पापी रेड्डी ने बताया कि अगर रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 7 मई को लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाता है तो इम्तहानात के इनेकाद के लिए कौंसल को 3 हफ्ते दरकार होंगे और उन्होंने तौक़े ज़ाहिर की कि लॉकडाउन के ख़ात्मे के बाद सूरत हाल मामूल पर तेज़ी से आनी शुरू हो जाएगी और एमसेट के इनेकाद की राहें हमवार होगी। लॉकडाउन के नतीजे में परेशान हाल किराएदारों को राहत पहुंचाने हुकूमत ने आज अहकामात जारी किए। रिहायशी मकानात के मालिकिन को हिदायत दी कि वो मार्च से 3 माह का किराया तलब ना करें और 3 माह बाद ये रकम इक़सात में यानी किस्तों में हासिल की जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज GORT 184 जारी किया जिसके तहत रिहायशी मकानात के किराएदारों को 3 माह की राहत दी गई है। यह राहत तिजारती अगराज के लिए इस्तेमाल होने वाले इमारतों के किराएदारों के लिए नहीं है। जियो में कहा गया है कि रियासत में आबादी की खासी तादाद किराए के घरों में रहती है और मकानात का माहाना किराया माकूल है। बास केसेस में माहाना इनकम का 40% किराए में जाता है। ऐसे किराएदार लॉकडाउन की सूरत हाल के नतीजे में बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अगर मकानदार की जानिब से किराए की मांग की गई तो किराएदारों पर बुरा असर पड़ेगा। किराए की अदम अदायगी की सूरत में अगर मालिक मकान तखलीए की हिदायत दें तो किराएदार लॉकडाउन के नतीजे में दूसरे मुकाम मुंतकली से कासिर रहेगा। जियो में कहा गया है कि किराएदारों के तखलिया और इनकी सरगर्मियों के नतीजे में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने हुकूमत के इक़दाम मुतासिर हो सकते हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है और 23 अप्रैल को पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुकदमात दर्ज किए हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 13,311 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें 1935 मोटरसाइकिलों, 182 ऑटोस और 253 कारों को जब्त कर लिया गया। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी और 3 किलोमीटर के लुज़ूम को तोड़कर सड़कों पर घूमने वाले 1174 मोटरसाइकिल सवारों और एक ही मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करने वाले 1098 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रमज़ान मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। ये रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना है। इस महीने में एक एक लम्हे का इस्तेमाल करें। दिन में रोज़ा रखें, रात में शब बेदारी करें, तिलावत कुरान करें, मौजूदा हालात के एतबार से घरों में नमाजें और तरावी अदा करें। उलमा व मशाइख की हिदायत के मुताबिक मस्जिद ही नहीं बल्कि किसी के घर में भी इज्तिमाइयत के साथ इबादत का अहतमाम ना करें।
لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب اور مستحقین پریشان ہیں، ان کی مدد کریں، کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے، اس پر عمل کریں۔ رکن اسمبلی چندران گٹا و قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لاک ڈاؤن سے پریشان غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کو برقی و آبی شرحوں کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس میں رعایت دیں۔ جن کے پاس راشن کارڈز نہیں ہیں ان کو بھی چاول دیے جائیں۔ بستی دواخانوں کے ذریعے مریضوں کو مفت دوائیں فراہم کی جائیں۔ سیکریٹریٹ کی عمارتیں جو خالی کرائی گئی ہیں اس کو کوارنٹائن سینٹر میں تبدیل کیا جائے۔ بڑلا گڑے میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے قائد مجلس نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ صرف لاک ڈاؤن سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیسٹوں میں اضافہ کریں، اناج کے جو گودام بھرے پڑے ہیں اس سے غریبوں کی امداد کریں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہمیشہ وزیر اعظم عوام کا تعاون طلب کرتے ہیں لیکن مرکزی حکومت کا دست تعاون عوام کے ساتھ نہیں ہے۔